Hello and uh, welcome for our next lecture. Myself, Professor Andy Fupate, and today we are discussing about the chromatography, in which we have to study about the basic introduction part of chromatography. So, what we have to be studied in the case of chromatography, as we are knowing something about chromatography, chroma is nothing but color and graph is nothing but writing. So, on the basis of color, we are writing something, or simply in other word, we can say that chromatography is nothing but the separation technique in which we separate the component into individual one. So, in this basic lecture, we have to cover lots of parts. As going through this lecture, first of all we discuss that what are the chapters that we have to be study in the case of chromatography, where we study about as there is a explain that introduction to chromatography. But in the case of introduction, you must able to know what is chromatography, how it separate, and its definition of the chromatography, and the classification of the chromatography, that we have to cover in this lecture. Then there are the various classes that we have to be study, like adsorption chromatography means what, then there is a partition chromatography means what, then on the basis of adsorption partition we have to study about the column chromatography, then paper chromatography, where we use the paper for the separation of the components. Then we have to study about the thin layer chromatography. Then we have to study about the electrophoresis. Then we have to study the two major chapters, that is the HPLC and GC. And then we have to study about the ion exchange chromatography, and two smaller chapter, gel chromatography and affinity chromatography. So these whole things we have to be study in this today's lecture. So before starting with today's lecture, we start with the what are the objectives of today's lecture. As I told to you, what are the objective? To start with the introduction of the chromatography. Then the next one is to identify or simplify the definition of the chromatography, and the third one is nothing but the classification of the chromatography. So here are the objective. Here is what, to understand the basic introduction of chromatography. So you have to study about the basic introduction. Then to study definition of chromatography, and to understand the classification of the chromatography. So I must request you to thoroughly listen each and every point and try to understand the concept. So start with the first slide, where we start with the introduction, where the technique is introduced to the, or the chromatography is nothing but the separation technique, as we know, but the main thing is that it is one of the oldest technique, and which was invested, where actually paper chromatography is the old one, but the chromatography mostly studied, or on the basis of the color that we studied, is done by the use of the columns. वहाँ पे हमने क्या किया है, कॉलम यूज किए हैं उस टेक्निक के लिए. ओके, सो in the case of this one, we are oldest method generally invested or invented by Amtwit. Okay, Amtwit is an S is a silent, so it is a Twit, name of the scientist who invented this technique. We have to study each and everything in detail about column chromatography, where that is the third lecture. Okay, so now just we take overlook of that point. So now we just wants to be study that there is a just one concept is that there is a separation of the component. हम इसमें क्या करते हैं, कंपोनेंट का सेपरेशन करते हैं. ठीक है, अब हम सेपरेशन कैसे करेंगे. सो
for that one, whatever he thinks he do, he first of all take one column. अब उसने क्या किया है, एक ऐसा एक कॉलम लिया है. He just invented, first thing is there, and like this one he take the columns, and this one is a small outlet from this one. So here is what, if you able to see it, there is an drops over whole entire part. ये पूरे के पूरे entire part के अंदर there is an adsorbent is added. Okay, this one is made up of glass. Okay, so here is what, here is a column, and into this columns what we do, we added the adsorbent. हमने इसके अंदर क्या किए हैं, adsorbent add किए. Mostly in the case of this examples, here is the calcium carbonate is the example that we have taken. ठीक है, तो हमने क्या किया है, this one is a cell, into this cell what we added, adsorbent. What is the meaning of adsorbent? Yes, adsorb means कुछ तो खुद की तरफ खींच लेंगे, adsorb खुद की तरफ खींचना. Okay, that is called as an adsorbent. So we have that adsorbent, we have set into this one. So as we keep it an adsorbent into this one, and example क्या लिया है हमने, this one is an calcium carbonate is an example of the adsorbent that we have taken in the case of this one. हमने calcium carbonate लिया है. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, there is added of the, here we add the some of the extract. ठीक है, यहाँ पे आपके adsorbent है. ठीक है, एडजॉर्ब का रोल क्या है, एडजॉर्ब करना. अब इसके अंदर हमने क्या किया है, ऐसे ड्रॉप ड्रॉप थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हमने क्या किया है, ऐसा एडजॉर्बेंट इसके अंदर ऐड कर लिया है. ठीक है, सो वी एडेड द एडजॉर्बेंट, सॉरी वी एडेड द व्हाट एवर द एक्सट्रैक्ट, दैट इज द vegetable extract. Okay, so after adding this extract to this one, okay, so we added the mobile phase. इसके अंदर हम क्या करेंगे, मोबाइल फेज. एक चीज कभी भी याद रखना है, दैट इज द स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी मीन्स इट इज रिमेन एट वन प्लेस. स्टेशनरी नेम ही है कि वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो कैसे रहेगा, एक जगह पे स्टेबल रहेगा, उसे हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज. और दूसरी चीज बोलते हैं हम उसको मोबाइल फेज. मोबाइल मीन्स व्हाट, it generally moves from one place to the another. So stationary phase might be solid liquid gas, or mobile phase might be solid liquid gas. So we have to study such a concept. So as I told to you already, हमने ये क्या है आपका adsorbent है. ठीक है, adsorbent आपको प्लेस कर लिया, that is called the stationary phase that we have added. अब इसके अंदर हमने क्या किया है, प्लांट एक्सट्रैक्ट. प्लांट एक्सट्रैक्ट मीन्स व्हाट, हियर इज योर ड्रग. आपका ये क्या हुआ, ड्रग हुआ, जिसको हमें स्टडी करना है. ठीक है, सो इन द केस ऑफ दिस वन, ये आपका ड्रग हो गया. और इसके अंदर हमने क्या किया है, देयर इज एडिशन ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड द मोबाइल फेज. वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हेक्सेन इन द केस ऑफ दिस वन. हमने क्या किया है, इसके अंदर सबसे पहले एडजॉर्बेंट ऐड किया, उसको स्टेबल कर लिया. उसके बाद इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है, देन वी एडेड द प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड देन वी एडेड द मोबाइल फेज. अब जैसे हमने मोबाइल फेज में हेक्सेन ऐड किया, दैट मिक्स विद आवर ड्रग दैट वी हैव टू बी सेपरेट, दैट इज द प्लांट एक्सट्रैक्ट. अब प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या रहेगा, देयर इज एन डिफरेंट कलर पिगमेंट्स दैट वी हैव टू बी स्टडी. तो प्लांट के अंदर वी नो दैट क्लोरोफिल, xanthophyll, these are the kind of the pigments that are present in the that extract. What we have to do, we have to separate that one. Okay, so here is that thing explained, that plant pigments percolating vegetable extract through carbon. Percolating means what, it is passing from this adsorbent. ये क्या हो रहे हैं, ये adsorbent के साथ ये पास हो रहे हैं. ठीक है, so in the case of this one we have added. अब ये जो है, सपोज आपके पास एक लाइन है, ये आपका प्लांट एक्सट्रैक्ट है. ठीक है,
एक कलर का है, बाद में if you add it the different colors like this one, no, this color is the same one, so we take it some different colors like if you added this one purple color, so now we have it added the this color. अब ये दोनों मिक्सचर जो है ना, दैट इज योर प्लांट एक्सट्रैक्ट विच इज परकुलेटिंग टू दिस वन, इससे जा रहे हैं. तो जैसे ये जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हियर वी गेट वन कलर. ओके, देन देयर इज एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस. अब इसमें से पास हो गए, सो हियर इज व्हाट, देयर इज एन एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस. Here is one component that gets separate. We can able to see there is an yellow color and then there is a purple color. And now here is able to see the purple color. And slowly we are able to see the same, that is the pink color. अब दोनों भी सेपरेट है, थोड़े थोड़े स्लाइटली सेपरेट होने लगे हैं. एंड फाइनली वी आर गेटिंग वन कलर separated out, and simultaneously we are getting the another color at a, but now what we are doing, they are separated from one another. अब ये जो है ना, ये इससे डिस्टेंस हमें दिख रहा है. पहले तो एकदम क्लोज थे यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़े सेपरेट होने लगे हैं, और यहाँ पे येलो कलर सेपरेट हो गया है, बाद में ग्रे कलर वाला सेपरेट हो गया है. सो द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट वन, there is a different substance adsorb at different rates. तो कुछ सब्सटेंस क्या करेंगे, अब ये जो रेड कलर है, रेड कलर क्या है आपके एड्सॉर्बेंट है, येलो कलर क्या है एक पिगमेंट है, देन पर्पल कलर क्या है दूसरा एक प्लांट एक्सट्रैक्ट का एक कंपोनेंट है. तो हमें क्या करना था, ये जो प्लांट कंपोनेंट है इसका सेपरेशन करना था, तो हमने इसमें से पास कर लिए, तो हमें कलर अलग अलग मिल गए. ठीक है, अब सिर्फ उतना याद रखो कि अब यहाँ पे एड्सॉर्ब हो गए. एड्सॉर्बेंट का रोल क्या है, खुद की तरफ खींचना. कुछ कंपोनेंट ज़्यादा एड्सॉर्ब करेंगे तो उनकी तरफ ज़्यादा खींचे चले जाएंगे, कुछ कंपोनेंट थोड़ा सा लेट एड्सॉर्ब करेंगे. तो जो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा करेंगे ना, वो उनकी तरफ थोड़े ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उनकी स्पीड अपने आप कम होने लगेगी. और जिनका एड्सॉर्प्शन थोड़ा कम है, हु इज हैविंग एन समवॉट लेट एड्सॉर्प्शन, दे लेस एब्जॉर्प्शन होने की वजह से थोड़े से जल्दी से नीचे आने लगेंगे. सो हियर इज एन थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस. और यहाँ तक आने के बाद क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों भी अलग अलग दिखने लगेंगे. मीन्स देयर इज एन सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. और सेपरेशन होने की वजह से क्या मिल रहा है हमें, इट गिव्स राइट्स टू कलर बैंड्स. हमें यहाँ पे एक कलर बैंड्स दिखाई देने लगे हैं. एंड here if you able to see here position is different one. इसकी यहाँ पे पोजीशन है और इसकी क्या है, यहाँ पे पोजीशन है, और इसकी यहाँ पे पोजीशन है. ठीक है, सो here is what we having and different positions. तो हमारी अलग अलग पोजीशन पे हमें दिख रहे हैं. so Twitt, the name of the scientist who invented, Twitt termed this color band. ट्वीट ने क्या किया, ये जो हमें कलर बैंड मिल रहे हैं ना, इस कलर बैंड को उन्होंने नाम दिया क्रोमेटोग्राम. उन्होंने क्या किया है, ये जो कलर बैंड फॉर्म हो रहे हैं इनको उन्होंने नाम क्या दिया है, क्रोमेटोग्राम. और इसकी जो मेथड है और जो स्टडी हम इसको कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. अब that is column is nothing but the non-instrumental technique in which there is a separation takes place. So we can separate color component as well as colorless component. So for the colorless component we used a different chromatographic technique for separation. We have to study thoroughly each and every point of the chromatography, but now just remember that one, what are the color bands that observe in a different positions, that color band is called as a chromatogram, and study of such a method of the chromatogram bands is called as a chromatography. And nowadays we can study the colorless compound as well as color compound. For colorless compound we use the GC, HPLC and so many separation techniques, and for the color components we can use the
column chromatography. Okay, HPTLC is also used for the same high performance thin layer chromatography, also used in the case of this one, that we have to be studied. TLC is another part that is covered in upcoming lectures. So now you just remember that one. Then this method is widely used. Simplest है कि ये मेथड हमें यूज़ करते हैं. वाई? वे वी यूज़ द एनालिटिकल स्टडी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी. अब ये जो ना कलरलेस कंपोनेंट का सबसे ज़्यादा रिसर्च मेथोडोलॉजी पे काम होता है. वी नो दैट मेथड डेवलपमेंट वैलिडेशन इन द केस ऑफ HPLC, in the case of GC, in the case of TLC, everywhere we are using different instrument for to the separation of the components. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल ड्रग के स्टडी करने के लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी एज वेल एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, और सिंथेटिक ड्रग के स्टडी करने के लिए हम GC, HPLC जैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं. Even TLC can use it for synthetic drug too. So that is a thing that we can use it in the case of this chromatography. I am taking so much time now for the first slide. So that is about the introduction of chromatography, how it develop and all things. Okay, so we move toward the next slide. That this one is an introduction part. Now there is a definition. So what is the definition? It is nothing but the separation technique और मेथड ऑफ सेपरेशन. अब इसमें सेपरेशन किसका होगा? पहले हमने अगर पिछले वाले स्लाइड में देखा था तो मिक्सचर ऑफ दोनों था, दो ड्रग थे, एक येलो कलर था, एक पर्पल कलर था. सो दैट इज अ मिक्सचर. बाद में हमने क्या किया, येलो कलर सेपरेट होने लगा, थोड़ा सा उसकी एफिनिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो थोड़ा ज़्यादा देर तक कॉलम में रहने लगा, और जिसकी एफिनिटी कम थी दैट इज अ पर्पल कलर, वो थोड़ा नीचे आने लगा. सो देर इज अ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. हमने क्या किया है, सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल वन. इंडिविजुअल मीन्स व्हाट, सिंगल कंपोनेंट थ्रू इक्विलिब्रियम. अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम है, हमने प्रेशर वगैरह सभी चीज़ें हैं. अब इसके ऊपर हम हाइड्रोलिक प्रेशर भी ऊपर से अप्लाई करते हैं प्रेशर पंप से, तो जाके जल्दी से जल्दी सेपरेशन हो सके. तो अब क्या होता है कि देर इज एन इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टू फेजेस. देर इज अ स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज. उनके बीच में वी कैन से SP and MP. Okay, so there is simplest is nothing but the chromatography is the separation technique in which mixture of the component is separated it into the individual one, when then there is an equilibrium distribution takes place between the two different phases. And what are the two different phases? That is the stationary phase and the मोबाइल फेज. इनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट कर पाएंगे. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी. आई होप यू गेट इट दैट वन. आप अपने मन से लिख सकते हैं कि नथिंग बट सेपरेशन टेक्निक इन विच द कंपोनेंट आर गेट सेपरेट टू द इंडिविजुअल वन, और मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट हम सेपरेट करके इंडिविजुअल हम सेपरेट करते हैं. when separate होते हैं then there is an equilibrium distribution takes place between the two different phases, that is stationary phase and the mobile phase. So that is the definition of the chromatography. अब हमारा पहला पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन का. Then second point is definition. I think everybody get it about the definition. Now we study about the classification of chromatographic technique. So in detail we have to study about the classification. So now there is an various methods on which we classify the chromatography. अब इसमें से कुछ कुछ पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है. वी जस्ट क्लासिफिकेशन हम पूरी तरह से स्टडी करेंगे सभी टेक्निक का, और उसमें से जो जो पार्ट आपके सिलेबस में आएगा हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है. सो हम ये भी पता चलेगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है. सो नाउ वी स्टार्ट विद मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन. ओके, टाइप ऑफ मोबाइल फेज, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, एंड बेस्ड ऑन द फिजिकल मीन्स method holding the stationary phase. Okay, like planar, TLC type. Okay, so like this one there is a separation takes place, and mechanism of separation like adsorption, like partition, everything that we have to be study. So now here we study first of all according to mechanism of separation. We give that heading as A.
is nothing but the heading according to mechanism of separation. Here is what adsorption chromatography is the first point, where there is an adsorption takes place. ओके एग्जाम्पल अभी जो हमने स्टडी किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हमने सेपरेशन किया, ठीक है, कुछ कंपोनेंट जिसकी एफिनिटी कम है वो जल्दी से सेपरेट होने लगा है, जिसकी ज़्यादा है वो थोड़ा सेपरेट होने लगा है, मीन्स स्लोली सेपरेट होने लगा है, और उसके ऊपर हमें कलर बैंड्स मिल रहे हैं और उसकी स्टडी कर रहे हैं हम तो क्रोमेटोग्राम, और उसकी मेथड स्टडी के लिए क्रोमेटोग्राफी हम उसको बोलते हैं. सो दैट इज एडजॉर्प्शन. पार्टीशन मीन व्हाट, देयर इज नो एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस. हियर इज अ पार्टीशन बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज. सो सॉलिड और लिक्विड के बीच में हम क्या करते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी करते हैं. साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी इन विच द साइज एक्सक्लूसिव मीन्स व्हाट, द कंपोनेंट्स which are particular size that we get separate out and exclude the excess size substance. Affinity chromatography in which it certainly shows certain amount of the affinity towards the substance. ये क्या करता है, affinity शोन करने लगता है, attraction शोन करने लगता है towards the separation, और उसके बेसिस पर हम उसको separation करते हैं. Then ion exchange chromatography, there is a change in the ions, charge हम बोलते हैं उसका, तो उसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं. और आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी वेयर देयर इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द आयन्स फॉर्म्स द पेयर, और उसका सेपरेशन हम करते. वन बाय वन वी स्टडी द mechanism of separations. Okay, so if you are able to see in this diagram, here is what, here is an adsorption chromatography. As we already know, here is the stationary phase is the solid, okay, adsorption power, and mobile phase is the liquid or gas. कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसका हम सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है. सिंपलेस्ट हमें जो अभी हमने स्टडी किया वही बोलना है, कॉलम की जैसा. मिक्सचर कंपोनेंट विल बी एब्जॉर्ब ऑनटू द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज. वो क्या करते हैं, हमने अभी जो डायग्राम ड्रॉ की थी, ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ऐसा एक कॉलम का लिया था, सिर्फ यहाँ पे हमने ऐसा एक एड्जॉर्बन ऐसा सेट किया है, ठीक है, तो हम इसके अंदर ऐसा एड्जॉर्बन सेट किया है, ठीक है. और so here is what we said, the adsorbent, the mixture of component will adsorb onto the surface. तो जैसे हम एक ड्रग और एक ड्रग है हमने ऐड किया, दोनों मिक्सचर है, तो यहाँ पे एड्जॉर्ब होने लगेगी. ओके, एड्जॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज बाय वीक आयोनिक फोर्सेस. So there is a force of attraction, that is ionic force takes place, and different component have different tendency to adsorb on stationary phase. कुछ की ज़्यादा रहेगी, कुछ की कम रहेगी, और उसके बेसिस पर हम इसका सेपरेशन करते हैं. ओके, सो इन द केस ऑफ दिस वन द फोर्स दैट वी रिक्वायर इन्वॉल्व आर रिलेटिवली वीक. ये फोर्स कैसा है, रिलेटिवली वीक है, बट इज एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर द सेपरेशन वन. वी कैन टेक द एग्जांपल्स लाइक कॉलम, और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन का एग्जांपल हो गया, लेकिन कॉलम एंड TLC, ओके, so that is nothing but an example of adsorption chromatography. Sometimes the column also work as an partition chromatography, but strictly TLC is an adsorption type of chromatography that we are studying. So I think you get it, adsorption chromatography. Now we study about the partition chromatography. So here if we are not repeating that point, you just remember that one. Adsorption आपका हो गया, partition. We have to study the what is the partition. So what is partition? Here the stationary phase is liquid. हम क्या कर रहे हैं, stationary phase is liquid coated or bonded on solid surface. हमने क्या है, स्टेशनरी फेज लिया है, और स्टेशनरी फेज कैसा है, लिक्विड है, कोटेड और बॉन्डेड ऑन सॉलिड सरफेस. हमने सॉलिड सरफेस को बॉन्ड कर लिया. एंड मोबाइल फेज में भी लिक्विड और गैस. हमने क्या किया है, मोबाइल फेज आपका लिक्विड और गैस यूज़ किया है. ओके, सो वी कैन टेक द पेपर्स. पेपर आपका सॉलिड स्टेशनरी फेज है, इसके अंदर हमने सब्सटेंस ऐड करते हैं, और उसके बाद हम उसका सेपरेशन करने लगते हैं. वी हैव टू स्टडी डिटेल अबाउट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इन पेपर क्रोमेटोग्राफी. हमारा सेकंड लेक्चर जो रहेगा इसके बाद का, उसमें हमें पूरा स्टडी करने वाले हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी. ओके, सो हियर इज सेलुलोज पाउडर and wet silica gel are example of supporting in a partition chromatography that carries a film of water act as stationary phase. हमने क्या किया है, cellulose powder and the wet silica gel are the example of supports in partition chromatography. We can use a simple paper also, no doubt, that carries films of water and act as a stationary phase.
जो कि फिल्म ऑफ वाटर है। और यहाँ पे क्या करता है, कभी कभी हम पेपर क्या करते हैं, पेपर अगर पानी में डाला तो क्या होता है, स्लोली स्लोली पेपर क्या करने लगता है, थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब करने लगता है खुद की तरफ। ओके, दैट इज कॉल्ड द कैपिलरी एक्शन, थ्रू द रीजन मूवमेंट टेक्स प्लेस। तो खुद की तरफ वो वाटर ऑब्जॉर्व करने लगता है। अगर हमने एक आधा कपड़ा भी अगर पानी के अंदर डाला ना, इमिडिएटली नहीं ये हो जाएगा, तो क्या करेगा, स्लोली स्लोली वाटर को ऑब्जॉर्व करने लगेगा। तो लाइक दिस वन दे एब्जॉर्ब। ओके, सो दैट इज अ स्टेशनरी फेज। सो दैट सैंपल मिक्सचर आर सेपरेटेड। हम क्या कर रहे हैं, सैंपल मिक्सचर आर सेपरेट अकॉर्डिंग टू रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ द सैंपल कंपोनेंट्स। तो कुछ कंपोनेंट क्या करेगा, आप इसमें ट्रैवल होने लगते हैं कंपोनेंट बाय द यूज ऑफ कैपिलरी एक्शंस, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट टेक्स प्लेस हु इज हैविंग। तो अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की तरफ वो ट्रैवल करने लगेगा, तो कुछ ज़्यादा एमिनिटी जल्दी से सेपरेट हो गए और उनका सेपरेशन होगा, कुछ थोड़े से लेट हो गए, तो उसके बेसिस पे हम उसका स्टडी करते हैं। ओके, कंपेरेटिव इज पार्टीशन बिटवीन मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द टू फेजेस। ये टोटली जो है ना सॉल्युबिलिटी ऑफ टू फेज के ऊपर डिपेंड है। एग्जाम्पल क्या है आपका, पेपर क्रोमेटोकॉपी। So that is about the partition chromatography. Then the third one, that is a size exclusive chromatography. आपके पास एड्जॉर्प्शन है, आपके पास पार्टीशन है आपके सिलेबस में, लेकिन आपके पास साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी आपके सिलेबस में नहीं है। सो जस्ट और लुक कर लेंगे हम, क्योंकि आपके क्लासिफिकेशन के अंदर आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। ओके, सो इट इज अ जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। हियर इज व्हाट, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। अब आपके सिलेबस में जेल क्रोमेटोग्राफी है, तो उसका रोल थोड़ा सा तो आने वाला ही है इसके अंदर। ओके, सो हियर इज देन व्हाट, size exclusive chromatography, also called as gel permeation chromatography, or it is an example of gel permeation chromatography. Here stationary phase used as polymer. हम क्या कर रहे हैं, अब size exclusive है, on the basis of size we are studied. So हम क्या क्या कर रहे हैं, here stationary phase user are polymer. Okay, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टेशनरी फेज यूज एज अ पॉलीमर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, आपको हर जगह पे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज आपको हर टाइम यूज करना रहेगा। वी आर यूजिंग द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज एट ईच एंड एवरी टाइम। है तो स्टेशनरी फेज यूज इज आर द पॉलीमर विच हैव बीन क्रॉस लिंक्ड टू ईल्ड एन ओपन नेटवर्क विथ न्यूमरस पोर्स ऑफ कंस्टेंट साइड। सो सिंपली हम क्या बोलेंगे, इट्स आल्सो कॉल्ड एज जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। अब इसके अंदर स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज के अंदर पॉलीमर्स है और पॉलीमर्स आर क्लॉस लिंक्ड है, और सिंपली वी कैन से इट इज न्यूमरस पोर्स ऑफ कंसिस्टेंट साइज। इसके अंदर क्या है, पॉलीमर के अंदर छोटे छोटे पोर्स है। ठीक है, अब आपके पास सपोज ये जो है ना, ये पोर हो गई, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ पोर्स है इसके अंदर। सो अब वी आर taking the substance that we have to be study. So here is the separation of sample mixture on the basis of what, अब affinity, adsorption, partition, अब ये साइड में चला गया। अब क्या हो रहा है, here is an size exclusive, size means what, particular size इसकी रहेगी, तो exclude हो जाएगी means what, remove हो जाएगा। unwanted, बहुत ज़्यादा साइज के रहेंगे तो इसमें से पास ही नहीं हो पाएंगे और उनके वजह से affinity नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, so here is the separation of sample mixture is based on the effective size in the solutions. अब आपके पास ये जो है ना, ये पोर है और इसके अंदर हमारे सब्सटेंस भी इसी साइज के हैं। इफ यू एबल टू सी इन दिस सब्सटेंस, तो ये भी आपके उसी साइज के जो आपके पास पोर थी। ठीक है, तो इफ यू एबल टू सी, ये इजीली इसके अंदर जाके फिट होगा, ये भी इसके अंदर नियर लेआउट सेम है तो फिट होगा, ये भी आपके इसके अंदर फिट हो जाएगा। सो व्हाट हैपन इफ इट कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंस लाइक अनदर वन, ये रहेगा, ये बड़ा रहेगा, ये भी बड़ा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हियर द लार्ज मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट फिट इन पोर्स वी आर एक्सक्लूडेड दैट वन, जो इसके अंदर सेट ही नहीं हो रहे इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। एंड इल्यूट फर्स्ट, इसके अंदर जाएंगे नहीं तो इल्यूट हो जाएगी जल्दी से जल्दी। ओके, एंड लेकिन अगर जिनकी साइज थोड़ी सी ज़्यादा है, विच इज हैविंग अ लार्जर साइज मॉलिक्यूल विच आर नॉट फिट इन पोर्स, वो क्या हो जाएंगे, उनकी तरफ एड्जॉर्ब ही नहीं होंगे और वो सेपरेट हो जाएंगी। और जिनकी साइज इक्वल रहेगी वो पोर्स के हिसाब से, तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब होगी, फिट हो जाएगी उसके अंदर और उनका सेपरेशन थोड़ा स्लोली हो जाएगा और उसके बेसिस पे हम इसका सेपरेशन करते हैं। दैट इज अ साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी।
Okay, if you are able to see in this diagram, here is what small molecules are free to diffuse in and out of the pair, so that their path is longer and they elute out later. Small particle क्या रहेंगे, आर फ्री टू डिफ्यूज इन द, इसके अंदर अभी आपके पास अगर देखेंगे ना तो आप इसके अंदर पोर्स है, पोर्स के अंदर क्या हो जाएगा, अगर इसकी पर्टिकुलर साइज रहेगी तो ये इसके अंदर ऐसे सेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर बैठेगी ही नहीं, तो ये इसके, ये जो मोबाइल फिश ट्रैवल हो रहा है, आपका अगर मोबाइल फिश रहेगा तो ऐसे इसके अंदर से ट्रैवल हो जाएगा और ये क्या कर लेगा, जो इसकी ज़्यादा साइज रहेगी, ये इफ यू विल टू सी सर वाइड वैल्यूम हमने दिया है, हियर इज वाइड वैल्यूम, ये जो डॉट डॉट लाइन है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये जो छोटे छोटे ड्रॉप है इसके अंदर सेट हो रहे हैं, और लार्ज साइज के क्या हो जाएंगे, ये वाले साइज के है, इफ यू एबल टू सी इन दिस साइज, तो थोड़े लार्ज साइज के रहेंगे। ओके, सो दे आर एक्सक्लूडेड फर्स्ट, वो क्या हो जाएंगे, पहले एक्सक्लूडेड हो जाएंगे, ठीक है। सो लाइक दिस वन दे आर सेपरेटेड आउट। ओके, तो हम इसका सेपरेशन हम उसका करने लगेंगे, ठीक है। पहले हम इसका इरेज कर लेते हैं पूरा, ठीक है। सो नाउ we have studied about that one. Now there is an ion exchange chromatography in which there is an exchange of the ions. So it is used for separation of charge molecule. हम इसका क्यों यूज कर रहे हैं, इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, जो चार्ज मॉलिक्यूल रहेगा उनका सेपरेशन करने के लिए यूज करेंगे हम इसका। सो द स्टेशनरी फेज इज एन आयन एक्सचेंज रेजिन, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल। ये तो हमें पता चल गया कि आयन इज नथिंग बट हैविंग अ पर्टिकुलर चार्ज, इसका एक्सचेंज हम करेंगे क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो दैट इज आल्सो नॉट, अभी ये जो है ना पॉइंट, ये तो हमारे सिलेबस में ऐसे मीन्स डिटेल में नहीं दिया गया है। सो शॉर्टली नो इट इज एन गिवन, मीन्स व्हाट गोइंग टू हैपन, आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी और जेल क्रोमेटोग्राफी, ये तीनों डिटेल में हमें स्टडी करने हैं। सो अभी हम स्टार्ट में क्या स्टडी कर रहे हैं कि इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, हमें इसका यूज कहाँ पे करना है, चार्ज मॉलिक्यूल। द स्टेशनरी फेज इज एन आयन एक्सचेंज रेजिन, यहाँ पे स्टेशनरी फेज क्या रहेगा, आयन एक्सचेंज रेजिन बोल के रहेगा। और इसके ऊपर अब सपोज आपके पास एक आधा ग्रुप है सी ओ बाद में ओ, दिस वन इज एन वन, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ऐसा सी ओ ग्रुप है और यहाँ पे माइनस साइन है, दिस वन इज वन ग्रुप। ओके, सो here is what stationary phase is an ion exchange resin to which a cationic or anionic groups, cat कभी भी याद रखना, cationic means what, there is a positive charge, T जब भी आता है it carries the positive charge, anionic is having a negative charge. Okay, so exchange resin to which cationic and anionic groups are covalently bonded. Ions of oppositely charged are also called as a counter ion in the mobile phase will attract to the resins. क्या होता है, आयंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और काउंटर आयन द मोबाइल फेज विल बी अट्रैक्ट टू द रेजिन्स एंड कॉम्पेट विद द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर फॉर द चार्ज ग्रुप ऑन द रेजिन। अब क्या होता है, जैसे हम एंटीजन रहते हैं और एलिजा एंजाइम लिखते हैं, इम्यूनोसर्वेंट, ऐसे हमने स्टडी किया था, तो वहाँ पे क्या रहता है कि देयर इज एन रेजिन टू विच और देयर इज एन एंटीबॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ दैट वन, देयर इज एंटीजन अटैच। सो रेडी लेबल एंटीजन और एंटीजन के बीच में कॉम्पिटिशन लगता है और दोनों में से कुछ एंटीजन जाके अटैच होते हैं और कुछ रेडियो लेबल एंटीजन जाके अटैच होते हैं। तो वैसा इसके अंदर है कि हम क्या कर रहे हैं कि आयंस ऑफ अपोजिटली चार्ज काउंटर इन द मोबाइल फेज विल बी अट्रैक्टेड टू द रेजिन्स एंड कॉम्पेट विद द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट के साथ वो क्या कॉम्पिटिशन करने लगते हैं एंड फॉर द चार्ज ग्रुप ऑन द रेजिन्स। सो और उस रेजिन को जाके अटैच होते हैं। ओके, सो द मिक्सचर ऑफ अल्कोलाइड्स, मिक्सचर ऑफ अल्कोलाइड्स कंपाउंड विद पॉजिटिवली चार्ज। अब अल्कोलाइड के अंदर क्या है, कंपाउंड विद द पॉजिटिव चार्ज कैन बी सेपरेटेड ऑन आयनिक एक्सचेंज। मिक्सचर ऑफ अल्कोलाइड्स that is a component with the positive charge can be separated as an anionic, while the mixture of organic acid that is a negative charge can be separated using the cationic exchanger. हम सबसे पहले चीज़ें हम यहाँ पे याद रखो कि
ions of opposite charge, that is counter ions in the mobile phase, will be attracted to the resins. Okay, so if you are able to take an example of this one, we take the if we take the COO group और उसको हम H में कन्वर्ट करने के लिए, मीन COH ग्रुप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा. और हम वी टेक द अनदर एग्जांपल दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें लिए क्या लगेगा हमें, इफ वी टेक द अनदर एग्जांपल दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4 आपके पास है, तो क्या हो जाएगा, वी एडेड द OH ग्रुप टू दैट वन. वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन. Here is what, anionic exchanger. So anionic में there is an opposite one. So here is a resin. It consists of COO minus group, CO minus group. This counter ions, that H positive ion, come to this one, lead to form a COH group. Whereas another one, that is a cationic exchanger, where opposite होने की वजह से we are attract the NH4 group with the OH minus group to this one, lead to formation of ammonium hydroxide, NH4 OH group to this one. So this one is an ionic exchanger example and cationic exchanger example. So I hope you are getting about this one. Then there is an ion pair chromatography. So in the case of this one, इसमें हम क्या करेंगे, there is an formation of an or there is an reagent with dissociate. सबसे पहले तो क्या होगा, dissociate होगे. अब this one is not in detail में तो हमें नहीं है इसका बारे में. So in the case of this one, in this method, a reagent which dissociate में breakdown हो जाएगा to give ions opposite in charge of those of sample solids. सबसे पहले हम reagent लेंगे which dissociate to give an ion opposite in charge to those of sample solids is added to the mobile phase. हमने इसको added कर लिया mobile phase में. The added ions, अब वो एडेड आयन क्या करेंगे, कंबाइंस विद द चार्ज सोल्यूट. हमने जो सोल्यूट ऐड किए हैं उनके साथ क्या हो जाएंगे, फॉर्म्स आयन पेयर एंड विच इज नॉन पोलर एंड विल पार्टीशन, ओके, पार्टीशन मोर रेडिली इनटू द स्टेशनरी फेज, और उसका सेपरेशन होने लगेगा. सो यहाँ पे हमने क्या किया, देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ एन पेयर. पेयर कौन से आपका जो रिएजेंट है, ठीक है. सो डिसोसिएट टू गिव एन अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ सैंपल सॉल्यूट्स, और बाद में दैट इज एडेड, बाद में आपके पास चार्ज सॉल्यूट है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, पेयर होगा और उनका सेपरेशन होगा. सो देयर इज आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी. देन देयर इज नेक्स्ट वन इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. एफिनिटी मीन्स व्हाट, देयर इज अ सर्टेन अट्रैक्शन टेक्स प्लेस. हियर द स्टेशनरी फेज इज अ स्पेसिफिक लिगैंड. स्टेशनरी फेज क्या है आपका, एक स्पेसिफिक ligand है which is immobilized, which can't be moved from one place to another. There is an immobilizer by chemical binding it to an insoluble matrix. Here is an stationary phase is a specific ligand है which is immobilized. Immobilized means what, there is a can't move from one place to another by chemical binding it to an insoluble matrix. तो इसका क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रहा है insoluble matrix के साथ. So various enzymes, protein, antibodies can effectively separate using this affinity chromatography. हम इसका एंजाइम का सेपरेशन के लिए affinity chromatography is we have to study in detail. So in the case of this one, just remember आपको क्या करना है कि that it can separate the various enzyme, protein, antibodies can be effectively separated using the affinity chromatography. Okay, so that are the classification. Okay, now they according to the mobile phase. So in the case of this one, liquid chromatography, where you can say high performance or high pressure liquid chromatography is the example. GC is the gas chromatography, and there is a supercritical fluid chromatography. Okay, so here we use the liquid chromatography is nothing but the mobile phase is liquid. Okay, name here liquid chromatography. So in case of separation adsorption, the stationary phase is solid, so it is called as the liquid solid chromatography. अब इसमें भी क्लासिफिकेशन करेंगे लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मीन्स व्हाट, हियर इज एन मोबाइल फेज इज लिक्विड, सो आपको पता चल गया. स्टेशनरी फेज माइट बी चेंज. स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, इज कॉल्ड एज द लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, और इफ इट इज अ लिक्विड देन इज कॉल्ड एज द लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. सो LSC and LLC, these are the types of the liquid chromatography. So I think HPLC हमें इसमें डिटेल में स्टडी करना है. So we cover every part in next one. Okay, now move to the GC. Here is the gas is the
mobile phase. Mobile phase, and generally it is an inert gases we are prepared like nitrogen or helium. So if the stationary phase is solid, it is called as a gas solid chromatography. अब इसके अंदर भी गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा. Okay, so stationary phase might be solid, might be liquid, but mobile phase is gas that we are using in the case of gas chromatography. Or supercritical fluid extraction. In case of supercritical fluid extraction SFC, the sample is carried through a separation columns. अभी इसके अंदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी जैसा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टिपिकली कार्बन डाइऑक्साइड वेयर द मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू यूनिक बैंड्स. हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ऐड कर रहे हैं. ओके, सो उसकी वजह से जल्दी से सेपरेशन हो सकेगा. सो दैट इज द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसएफसी इज दैट इट प्रोवाइड रैपिड सेपरेशन बिकॉज वी आर अप्लाइंग प्रेशर इनटू दैट वन. सो हियर द सेपरेशन टेक्स प्लेस इन फास्टर रेट. जैसे हम पानी का रहता है, पानी का नल आता है तो पानी आने लगता है, लेकिन हमें उसको स्पीड से बनना चाहिए तो हम क्या करेंगे मोटर अटैच करेंगे. मोटर अटैच करने की वजह से क्या हो जाएगा आपका जल्दी से जल्दी वाटर आने लगेगा, आपको टंकी में आने लगेगा. और हमने एक जगह पे दोनों घर है, एक जगह पे मोटर लगाए तो पानी जल्दी आने लगा, एक जगह पे नहीं लगाए तो उसकी तरफ से स्पीड कम हो गई. सो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि देयर इज एन वी आर अप्लाइंग प्रेशर टू दिस वन, सो इट गिव्स द मोर रैपिड सेपरेशन. इट आल्सो नॉट रिक्वायर एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन इट डजंट रिक्वायर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच वी हैव टू रिक्वायर इन HPLC. हम इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कोई ज़रूरत नहीं है. व्हाट आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक मिथेनॉल, आइसोनाइट्राइल, HPLC वाटर, दीज आर द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. मोस्टली आइसोनाइट्राइल, मिथेनॉल is an example of this one which are using as an organic solvent that we have to be studying. Then finally, based on the physical means, okay, so method of holding the stationary phase. Stationary phase को हम कैसे होल्ड कर रहे हैं? So they are classified into two types, plain और planar chromatography. Example क्या है आपके? Here is the paper chromatography, thin layer chromatography. These are the types of an plain or paper chromatography. And there is the column chromatography, where we use the columns. Okay, so if you are able to see in this diagram, here is what thin layer chromatography. So we are taking this as a TLC or paper. So here is also we are added the paper into this one. हम इसको पेपर को स्टेबल कर रहे हैं और यहाँ पे कांच से बनी वाली प्लेट हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं. ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज यूज्ड विद द फॉर्म ऑफ लेयर. हम क्या कर रहे हैं स्टेशनरी फेज लेयर के जैसे वी आर कटिंग द पेपर्स. पेपर हम कट करके एक पर्टिकुलर यूज़ करते हैं और आपके पास एक आधी प्लेट रहेगी और ग्लास से बनने वाली प्लेट रहेगी, उसके ऊपर हम एडजॉर्बन ऐड करेंगे. सो दैट इज अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड हियर इज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी. Okay, so that is the plain chromatography and there is a column chromatography. I think everybody know about that. Stationary phase is held in the tube made up of glass or metals. इसके अंदर mixture analyze कर रहे हैं, apply to the top of the columns the liquid solvent. The liquid is passes through the columns, gravity और by the application of the air pressure. तो हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके इसको पास कर रहे हैं, तो एफिनिटी के बेस पे कंपोनेंट सेपरेट हो गए. जिसकी कम एफिनिटी रहेगी जल्दी सेपरेट हो जाएगा, जिसकी ज़्यादा एफिनिटी रहेगी वो क्या हो जाएगा थोड़ा स्लोली सेपरेट होगा, और उसके बेसिस पे हम ये स्टडी करते हैं. So I think everybody know about this one is the introduction of the chromatography. Hope you understand the whatever the concept or the basic thing about the chromatography. So in the next lecture we are studying about the paper chromatography and the column chromatography. This week we study about the paper and the column chromatography in detail. So I must say thank you very much for your patience listening. I hope you are understanding the basic concept like stationary phase means remain stationary, mobile phase means movement, and the component gets separated into an individual one where there is a distribution equilibrium takes place between the two different phases, that is the stationary phase and the mobile phase. At least you know the definition and various kinds of the classification of the chromatography. I hope you understand all of the things. So thank you very much. Wish you a very happy learning and bye.